अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और आज आप लोग के लिए लाई हूँ रेजोल्यूशन डे से एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी वेलकम्स प्रेसिडेंट मुर्मू, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट एंड अदर डिग्निटरीज ऑन 76th रिपब्लिक डे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। The Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar, arriving here, along with his wife, Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the saluting base. Rashtrapati ke Angrakshak, on their magnificent bay and dark bay-colored mounts, the senior-most regiment of the Indian Army, escorting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, the President of India, to the saluting base, as India celebrates her 76th Republic Day. So extending a warm welcome, the Republic of India extends a very, very warm welcome to the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, our chief guest for India's 76th Republic Day celebrations, arriving here along with the President of India. गणतंत्र दिवस समारोहों पर ये विशेष अवसर, देश की माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन और उनके साथ हमारे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो। India and Indonesia, two nations that share millennia-old cultural and trade links with shared religious traditions of Buddhism and Hinduism, and a strong treaty of friendship and strategic partnerships. In fact, India and Indonesia's multifaceted partnership stands as a cornerstone of regional security, economic growth, and cultural diplomacy, with both nations well positioned to enhance their global outreach. A beautiful day in the capital, and the welcome warmth of the sun echoing the warmth and friendship between the two nations. भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे। और आज 75 वर्ष बाद ये एक सुखद संयोग है कि इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति भारत के इस गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि हैं। इस बार का समारोह संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष फोकस के साथ साथ ही जन भागीदारी भी इस बार के समारोह के केंद्र में है। इस वर्ष समारोह का थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। So as a part of the special invitees, we have a huge delegation from Indonesia, and of course we'll have their band and their marching contingent. And they have some beautiful memories and pictures to take back with them. And now the national anthem, the 21-gun salute,
and the unfurling of the national flag. The commandant of the president's bodyguard, Colonel Amit Berwal, giving the command, the PBG or the president's bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past, foreground the present, and herald the future. And the tricolour, of course, our national symbol, adorning different places and spaces today, a symbol of national pride, fluttering proudly. राष्ट्रपति अंगरक्षक प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से और अब ये मंच तैयार है जहां ओह माय गॉड, गूज बम्प्स पड़ रहे थे मुझे। मतलब क्या बात है, मज़ा आ गया। अच्छा, सबसे पहले मैं द्रौपदी मुर्मू, आई थिंक मैं सही नाम ले रही हूँ, अगर गलत हो तो मुझे बताइएगा। मैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगी। मैंने पूरी एक वीडियो देखी थी उनके हवाले से, और उसमें बताया गया था कि वो कितनी ज़्यादा मतलब एक बहुत ही मामूली सी औरत थी, और एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। आई थिंक आदिवासियों में से, शायद मुझे जहाँ तक याद आता है, था उनका घराना, शायद उनमें से ही था। और बहुत छोटा सा एक विलेज था, गाँव था। और फिर उसके बाद उन्होंने एक स्कूल में काफ़ी काफ़ी सालों तक टीचिंग करी। उसके बाद उन्होंने पता नहीं उनकी फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा बहुत ही भयंकर इंसिडेंट हुआ जिसमें पूरी फैमिली उन्होंने खो दी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। या शायद एक बेटी है उनकी, बाकी हस्बैंड वगैरह के हवाले से यही बताया गया था उस वीडियो में। और फिर उन्होंने बहुत मेहनत करी, एक छोटी सी कारकुन थी, उसके अलावा वो बहुत पैशनेट होकर काम करती थी। उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, बहुत काम किया, अपने लोगों के लिए, जिस जहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ उन लोगों के लिए बहुत काम किया। और फिर आखिरकार जाकर उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें प्रेसिडेंट का पद मिला, प्रेसिडेंट बनाया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये कहानी अगर मैं किसी को सुनाऊँ तो वो ये कहेगा कि मेरे साथ मजाक कर रही हो या मुझे पागल बना रही हो, लगता है कि मेरे पास अकल है नहीं। लेकिन क्योंकि ये सच्चाई पर मबनी है और ये सच है, ये हकीकत है, तो इससे, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि एक ऐसा कंट्री है इंडिया जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपके, यानी आपकी नीयत की, आपकी मेहनत की, आपकी लगन की, आपकी सोच की बहुत कदर है, ठीक है? और उसकी बिना पर ही इन रिटर्न आपको सराहा जाता है, उसकी बिना पर ही आपको बदले में पद और पोस्ट दी जाती है, ठीक है? हमारे सामने ऐसी बहुत सारी मिसालें, हम किसी एक को डिनाई नहीं कर सकते कि जी ये मनगढ़ंत कहानी है या ये एमी बोल रही है। चलिए मुर्मू जी को हम डिनाई कर देते हैं, फॉर सपोज हम उन्हें नेगलेक्ट करके, इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी जी हमारे सामने जीती जागती मिसाल है, ठीक है? एक ऐसे इंसान जिनका ना घर, ना बार, ना दौलत, ना पैसा, ना शौहरत, कुछ भी नहीं था जिनके पास, ठीक है? एक तरीके से उन्होंने दुनियादारी को बिल्कुल त्याग दिया था, ठीक है? 2 वक़्त की रोटी भी उन्हें मयस्सर नहीं थी, ठीक है? दरवेश वाली ज़िंदगी वो गुज़ार रहे थे, और बेतहाशा कठिन हालात देखे, तकलीफ़ें देखी, दर्द देखा। फ़ादर की एक चाय की शॉप थी, शॉप भी नहीं, एक टपरी टाइप का था चाय का, एक ढाबा टाइप का समझ लें।
और उसके बाद उसी को वो भी संभालते थे, थोड़े दिनों तक उनने वो ही किया। तो फिर लोग ये कहते हैं कि एक चाय वाला, एक चाय वाला, एक चाय वाला, इतना कि आप देखो जिस मुल्क में एक चाय वाले को पीएम बनाया गया है, तो उस मुल्क में, मैं ये नहीं कहती कि बुरे लोग हैं ही नहीं, मैं ये नहीं कहती कि गलत नहीं होता होगा, ठीक है। जहाँ अच्छे बुरे लोग होते हैं वहाँ ज़्यादती भी होती है, वहाँ गलत भी होता है, वहाँ पर एक दूसरे के साथ ठगा भी जाता है, एक दूसरे को बेईमानियाँ भी होती हैं, ठीक है, करप्शन भी होती होगी। देखो पॉलिटिक्स के अंदर मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत क्लियर है, इनकी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, बहुत शफाफ है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन इन चीज़ों से, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो उदाहरण हैं इन लोगों के, इससे मुझे लगता है कि हमें ये पता चलता है कि एक गरीब इंसान, एक मेहनत करने वाला इंसान, एक बड़ी सोच रखने वाला इंसान जो है, उसकी बहुत कदर है इंडिया में या आप लोगों के नज़दीक। उसे जितना सराहाया जाता है, उसे जितना बड़ा पद दिया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी सोच, उसकी लगन, उसकी मेहनत की बिना पर। एक बहुत बड़ा डे है रिपब्लिक डे, हम लोग भी जानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जोश खरोश से मनाया जाता है। डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं और डिफरेंट चीज़ें, मशक़ें वगैरह भी हो रही होती हैं हमारे यहाँ। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है, चाइना के साथ हम ज़्यादा ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं, मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी मुर्मू जी भी मौजूद थी, पीएम मोदी जी भी मौजूद थे। अच्छा, पीएम मोदी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, वो किसी को भी रिसीव करते हैं, किसी को भी उनका एक जेस्चर ऐसा है, बहुत अपनाइयत वाला है। वो किसी को भी बहुत बढ़िया तरीके से रिसीव करना जानते हैं कि उसको किस तरीके से रिसीव करना है, किस तरीके से एक ऑनर देना है, एक इज़्ज़त देनी है, एक वक़ार का यकीन दिलाना है। अगर वो इंसान दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आया है तो हमें भरपूर उसका एक इज़्ज़त और वक़ार से स्वागत करना है, ठीक है, ताकि वो यहाँ से जाए तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन, बहुत अच्छा हमारा इम्पैक्ट लेकर जाए कि इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं। और ये चीज़ पूरी दुनिया में फैली हुई है कि इंडियन बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं, बहुत इज़्ज़त देने वाले होते हैं और बहुत अपनाइयत पाई जाती है उनमें। तो मैंने मोदी जी के अंदर ये क्वालिटी भी देखी है कि वो किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट करना जानते हैं, ठीक है। अभी मैंने देखा वीडियो में, एक छोटी सी बात है लेकिन छोटी छोटी बातों से आपको पता चल जाता है चीज़ों का, कि वो हर किसी से इंट्रो करवा रहे थे। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका बार बार हर किसी से इंट्रो करवा रही है, ये फ़लाँ साहब है, ये फ़लाँ साहब है, ये फ़लाँ साहब है, और वो बड़े इत्तेफाक से मिल भी रहे थे। अच्छा, उनको भी मैंने देखा काफ़ी इज़्ज़त, काफ़ी एक सम्मान के साथ वो पीएम मोदी से रिएक्ट जिस तरीके से कर रहे थे, या मुर्मू जी के साथ जिस तरीके से आए उतरे, तो एक बहुत सम्मान, एक बहुत ही हम्बल और पोलाइट वे था उनका, जो देख के बहुत खुशी हो रही थी। और बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है रिपब्लिक डे। बड़ा कलरफुल सा डे है ये, मुझे ऐसा लग रहा है रेड ही रेड, वाइट ही वाइट, इस तरीके से। मतलब वैसे तो इंडिया वैसे ही वाइब्रेंट है, बहुत कलरफुल है, लेकिन मैंने देखा है डेज़ की मुनासबत से भी, इवेंट्स की मुनासबत से भी, जो लिबास से वितन किए जाते हैं या जो कॉस्ट्यूम की एक चॉइस होती है, वो बहुत आला और बहुत बेहतरीन किस्म की होती है, बंदे को अट्रैक्ट करती है। कि मैं देखो, मैं तो वीडियो देखना चाह रही थी लेकिन 6 मिनट्स ख़त्म हो गए, उसके बाद वीडियो ही ख़त्म हो गई। आगे होगी लेकिन एक छोटा सा पीस था ये, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को ये वाला रिपब्लिक डे, और होपफुली रिपब्लिक डे आप लोगों के लिए बहुत सारी कामयाबियाँ, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और इंडिया मज़ीद आगे बढ़े और तरक्की करे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।